Hello and welcome students to your own platform, that is the Discovery and YCL, that is the brand of quality education. And my dear class 12 students, yesterday we had discussed about the structure of the male reproductive system and how is the process of the primary sex organ, the secondary and your accessory glands, what are they doing. Today we will be discussing a step further and we will be discussing about the cross section of the seminiferous tubule and what is actually going on inside the seminiferous tubule. So let us get started. So today's topic, it will be inside the seminiferous tubule. So let's get started. So, dear students, I have for you a picture in which we will be labeling each part and we will be easily understanding what is there inside the testis. Clear? So, this is a cross section, a 3D cross section of the human male testis. And let us begin, first of all, with certain kind of information. The first one, that this testis is covered all together by a layer, which layer is known as the tunica vaginalis. The outermost layer which is surrounding the testis is the tunica vaginalis. And you can easily see that the tunica vaginalis has one layer which is the outer and the other one which is the inner. So the outer one is known as the parietal tunica vaginalis, whereas the under or the inside one is known as this will be the visceral tunica vaginalis. So if I say that the outer layer of the tunica vaginalis is distributed into one outer one, that is the parietal, and the inner one which is the visceral layer. Clear? Now, so inside this we can see there is a cavity also. The cavity which is formed by the two layers of the tunica vaginalis. Next, now if I say this layering over here, which is actually the layer which is surrounding the testis, now the inner side of the testis, this is known as the tunica albuginea. This is known as the tunica albuginea. Clear? So tunica vaginalis and inner to it will be the tunica albuginea. Next, here we can say that this testis over here is actually dividing into two sections by a mediastinum. So this portion over here, we can say that it is an imaginary line which is separating this portion of the testis with this portion of the testicular apparatus. So this is the imaginary which we say as the mediastinum. This is known as the mediastinum. Clear? Next, now this mediastinum is again divided into a lot of chambers, as we can see over here, and each of these chambers is known as the testicular lobules. Testicular lobules. Clear? So this testicular lobules, inside this testicular lobules, we can find a very highly coiled structure, and that is the most important part of the testis, which is said to be the seminiferous tubule. Seminiferous tubule. So this is
the most important structure inside the testis. And why so? Because here will be the process of spermatogenesis that will be taking place. So here is the presence of seminiferous tubule. देखिए कैसे करके ये बिल्कुल हाईली कॉइल्ड करके स्ट्रक्चर यहां पर आपके सामने है. ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काटे तो उसके क्रॉस सेक्शन में क्या क्या चीज हमें मिलेंगी. ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं एक बार. जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये देखिए ऐसे आपके स्ट्रेट लाइन से ये बाहर निकल के आ रहा है. क्लियर? सो ये जो आपका पोर्शंस बन रहा है, इन पोर्शंस को हम लोग नाम देंगे द ट्यूब्यूली रेक्टाई. इसको हम लोग नाम देंगे द ट्यूब्यूली रेक्टाई. क्लियर? द स्ट्रेट लाइंस विच आर कमिंग आउट या विच आर अराइजिंग आउट ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. And all this seminiferous tubule is forming a highly coiled structure. और ये highly coiled structure को ही मैं नाम यहां पर दूंगा, इसी को नाम दूंगा यहां पर rete testis. इसको हम लोग यहां पर बोल देंगे कि यही हो जाएगा आपका the rete testis. क्लियर? सो rete testis से होते हुए अब ये आपके कम से कम नहीं तो 10 से 12 ऐसे लंबे लंबे आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल के, एंड दिस विल बी मूविंग आउटसाइड द टेस्टिस. क्लियर? सो that rete testis will be now emerging to form the tubular structure जिसको हम लोग नाम देंगे the vasa efferentia. vasa efferentia का स्ट्रक्चर यहां से आपका ग्रो करेगा, एंड दिस vasa efferentia जो भी आपके गैमेट बनेंगे उसको रिलीज करेगा फ्रॉम द टेस्टिस. क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट, अब देखिए बेटा कि ये जो आपका वासा एफरेंशिया है, ये जाके अगेन एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना रहा है एट द बैक ऑफ द टेस्टिस. सो ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को ही हम लोग नाम देंगे एपिडाइडिमिस. इसको हम लोग नाम देंगे एपिडाइडिमिस. और एपिडाइडिमिस का फंक्शन याद रखना है आपको. इसका फंक्शन है MMS. M फॉर मैच्यूरेशन होगा गैमेट्स का, अनदर M फॉर मॉडिफिकेशन होगा इस गैमेट्स के, और S फॉर स्टोरेज ऑफ द गैमेट्स. किसको स्टोर करके रखेगा? ना जो स्पर्म्स है उसको स्टोर करके रखेगा. कौन? एपिडाइडिमिस. क्लियर? और ये जो लंबा सा एपिडाइडिमिस आप देख रहे हो, इसको भी हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हेड, बॉडी एंड टेल. तो जो हेड स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग यहां पर नाम दे सकते हैं, दिस इज नोन एज द कैपट. क्या नाम दे सकता हूं इसको? हम लोग इसको यहां पर नाम दे सकता हूं कैपट. चलिए इसको मैं दूसरे इंक से लिख लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे. सो ऑटोमेटिकली इसको हम लोग नाम दे सकते हैं कैपट. क्लियर? बट जो आपका बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग नाम देंगे कॉर्प्स. क्या नाम देंगे इसको? इसको हम लोग नाम देंगे कॉर्प्स. क्लियर? एंड फाइनली नीचे वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग नाम दे देंगे द टेल ऑफ द एपिडाइडिमिस. सो एपिडाइडिमिस जो स्ट्रक्चर है उसके आपके 3 पार्ट्स. वन विल बी द हेड और द कैपट, द बॉडी और द कॉर्प्स, एंड द लोअर पार्ट विच इज बी नोइंग एज द टेल. क्लियर? ये जो टेल है ये अब आपका एक किसमें फॉर्म हो रहा है? न, ये आपका हो रहा है अब एक स्पर्मेटिक डक्ट के अंदर, और इसी स्पर्मेटिक डक्ट को हम लोग नाम देंगे जो हमारा वास डिफरेंस है. इसी को हम लोग नाम देंगे वास डिफरेंस, या जिसको हम लोग कॉमनली बोल सकते हैं द स्पर्म डक्ट. इसको हम लोग नाम दे सकते हैं वास डिफरेंस
या इसको हम लोग बोल सकते हैं द स्पर्म डक्ट। क्लियर? और देखिए बेटा, स्पर्म डक्ट जो है वो आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, और तो ये वाला क्या पोर्शन है जो आपके ब्लू और रेड में दिया जा रहा है? Now obviously this will be something related to the blood vessels, the vascular tissues, because ये भी एक सेल है, तो इसके भी हर एक सेल को ब्लड चाहिए होगा, सप्लाई चाहिए होगा। सो ऑटोमेटिकली जब आपका ये टेस्टिस डिसेंड कर रहा है, यहां पर एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से आपका गुजरेगा क्या चीज? एक तो सबसे पहले आपका गुजर रहा है जो स्पर्मेटिक डक्ट है, ये पोर्शन, और गुजरेगा ये सारे चीजें। तो इसके अंदर क्या क्या चीज है फटाक से देख लेते हैं हम लोग ना। सबसे पहले देखो बेटा, जो ये ब्लू कलर में दिया हुआ है ये हो जाएगा टेस्टिक्यूलर वेन। टेस्टिक्यूलर वेन हो जाएगा, जो आगे जाके आपके पूरे में फैल के और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके बाहर जाएगा। जो ये रेड कलर में दिया हुआ है इसको हम लोग नाम देंगे द टेस्टिक्यूलर आर्टरी। इसको नाम दे देंगे हम लोग टेस्टिक्यूलर आर्टरी। और जो नहीं हमें समझ आ रहा है, जो ब्लैक कलर में भी आपके बहुत अच्छी तरह इनके पास आएगा, इनको हम लोग नाम दे सकते हैं द टेस्टिक्यूलर नर्व। इनको नाम दे सकते हैं टेस्टिक्यूलर नर्व। तो अगर आपसे पूछे यहां पर कि ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या क्या चीजें आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले टेस्टिक्यूलर आर्टरी, नंबर 2 टेस्टिक्यूलर वेन, नंबर 3 टेस्टिक्यूलर नर्व, और 4 नंबर हो जाएगा आपका द वास डिफरेंस। दीज आर ऑल पासिंग थ्रू दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड। समझ में आया सबको अच्छी तरह? क्लियर? बहुत अच्छी तरह रुक रुक के ये स्लाइड को देखो, बिकॉज हर एक चीज जो यहां पे मेंशन किया है, ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया बेटा? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि अगर मैं इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को काट दूं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या चीजें होंगे। सो लेट अस अंडरगो दैट पोर्शन। सो हियर इज द स्लाइड which we have prepared for you, जहां पर हम लोग inside the seminiferous tubule की बात करेंगे। So देखो, ये आपका seminiferous test tube था। So this was your, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं the testis। ये testis थे, और इस testis के जो ये वाला पोर्शन है seminiferous tubule है, इसी को हम लोग यहां पर काटे, और काट के इसको हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका सबसे पहले बाहर की तरफ ऐसे लेयरिंग है, इस लेयरिंग में इसी को हम लोग नाम दे सकते हैं, यहां पर दे सकते हैं हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स होंगे, जो लेयर्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होगा क्यूबॉइडल सेल्स का बना हुआ, और एक हो सकता है कॉल्यूमनर सेल्स का बना हुआ। क्लियर? बीच बीच में आप देखिए, यहां पर तो कुछ सेल्स आपको नजर आ रहा है, बट बीच बीच में आपको कुछ इस तरीके के सेल्स नजर आ रहा है। ठीक है? क्लियर है? सो एक तो आपके सेल्स हो जाएंगे ये वाला, दूसरा सेल हो जाएगा जिसको हम लोग नाम देंगे ये वाले। तो ये जो सेल्स है बेटा, ये सेल्स हो जाएगा आपका क्यूबॉइडल सेल्स, जो कि डेवलप होके बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और यही आपके सेल्स है जो कि अब धीरे धीरे अंडरगो करेगा मियोसिस, और अंडरगो मियोसिस करके वो धीरे धीरे अब बनाएगा स्पर्म्स। और ये जो सेल्स है बेटा अंदर की तरफ, इसको हम लोग नाम देंगे सर्टोली सेल्स। ठीक है? क्लियर? सो जो आपका यहां पर बड़ा करके मैं बता देता हूं, ये जो क्यूबॉइडल सेल्स है इसको तो आपका बनाएगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। और ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट हो जाएगा और बनाएगा द स्पर्मेटोगोनिया
एंड स्पर्मेटोगोनिया को ही हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं, दिस इज द स्पर्म मदर सेल। क्लियर है? ठीक है सर। अब ये जो कॉल्यूमनर सेल्स है, ये जो कॉल्यूमनर सेल्स है, कॉल्यूमनर सेल्स हो जाएंगे डेवलप इनटू द नर्स सेल्स, और ऑटोमेटिकली नर्स सेल्स का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसी को हम लोग यहां पर नाम देंगे द सर्टोली सेल्स। क्लियर है? ठीक, देखिए ये इमेज आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम लोग लिए हैं, और इस छोटा सा क्रॉस सेक्शन को यहां पर हमें दिखाया गया है। इसके अंदर क्या चीज दिखाई दे रहा है ना? सबसे पहले यहां पर आपका जो लेयरिंग, आउटर लेयरिंग है, जो कि ये वाला पोर्शन है, क्लियर, आउटर लेयरिंग है। उसके बाद यहां पर आपका कुछ क्यूबॉइडल सेल्स नजर आ रहा है हमें, और कुछ लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स हमें, सॉरी, कॉल्यूमनर सेल्स नजर आ रहा है। तो ये जो सेल्स है ये तो हो जाएगा आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, और ये जो हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा सर्टोली सेल्स। क्लियर? तो देखो यहां पर आपका डिपिक्ट हो रहा है जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी अच्छी तरह यहां पे डिपिक्ट हो रहा है। जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आपका कंसेप्ट है इसके अंदर जो हमें यूज करना है ना। बेटा देखो ये जो आपका सेल है यही सेल था जो हम लोग नाम देते थे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये हमारा जो सेल्स है, ये सेल्स कैसे होंगे? ये डिप्लॉयड सेल्स है। क्लियर है? यहां पर होगा मल्टीप्लिकेशन, और कई सारे आपके टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनेंगे जो अब इंक्रीज होगा साइज में। क्लियर? और ये जो इंक्रीज साइज हुआ इसी को ही हम लोग नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको नाम देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर है? तो ये जो हमारा सेल था वही सेल हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और ये भी कैसा है? ये भी है आपका 2n। सो ऑटोमेटिकली दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज योर माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज एंटरिंग इनटू द मियोसिस 1 स्टेज, इसी को हम लोग मैच्यूरेशन 1 भी नाम देते हैं। ठीक है? तो ये जो आपके सेल्स बने हैं सर, यही है आपके ये वाले सेल्स जिनको हम लोग नाम दे सकते हैं द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम लोग नाम दे सकते हैं द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये बेटा हो जाएगा आपके हैप्लॉइड सेल्स, बिकॉज ऑलरेडी आपका मियोसिस यहां पे हो चुका है, पहला मियोसिस। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये अगेन मियोसिस 2 होगा इनके अंदर, और मियोसिस 2 होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाएगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे स्पर्मेटिड। इनको नाम देंगे हम लोग स्पर्मेटिड। तो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करके कितने स्पर्मेटिड बनाया? टोटल 4 स्पर्मेटिड बनाया। बट ये सारे स्पर्मेटिड कैसे है? ये सारे स्पर्मेटिड इनएक्टिव है सबसे पहले। अब इनका होना पड़ेगा मॉडिफिकेशन, इनके डिफरेंशिएशन होना पड़ेगा। शेप में बहुत ज्यादा आपका स्ट्रक्चर चेंज होने को है, क्योंकि देख रहे हो ये जो आपका स्ट्रक्चर है यहां पर, जहां पर हमें प्रॉपर एक हेड नजर आ रहा है, मिडिल पीस नजर आ रहा है, टेल नजर आ रहा है। सो ये आपका होगा एक प्रॉपर, जिसको हम लोग नाम देंगे स्पर्मेटोजोआ। और ये जो डिफरेंशिएशन हुआ, यही डिफरेंशिएशन के लिए जिम्मेदार होगा कौन? जिम्मेदार होगा
सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली सेल्स यहां पर इसको डिफरेंशिएशन करवाएगा और डिफरेंशिएशन करवा के आपका उसका जो स्ट्रक्चर है आकार बदल देगा, उसको अब एक्टिव बना देगा ताकि वो आसानी से स्विम कर सकते, जिसकी वजह से इसका एक आपका टेल भी हमें नजर आ जाएगा। क्लियर? अब देखो ये कैसे हो रहा है ना, ये जो स्पर्मेटिड थे बेटा, ये जो स्पर्मेटिड थे, ये स्पर्मेटिड धीरे धीरे आके और इसके साथ जुड़ जाएगा। ये आपका एक स्पर्मेटिड है जो आपका सर्टोली सेल से जुड़ गया है। क्लियर है? अब दिस विल बी अंडरगोइंग एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस को हम लोग यहां पर नाम दे सकते हैं द स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है डिफरेंशिएशन या मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। क्लियर? और जैसे ही स्पर्मेटोजोआ आपका बन जाएगा, नाउ दिस विल बी रिलीज्ड आउट। ये आपका रिलीज्ड हो जाएगा और देखिए ये आपके पास अब बन गया प्रॉपर स्पर्म्स। और ये स्पर्म्स आपके दे आर रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो जैसे जैसे यहां से आपका निकल के आएगा तो यहां पर छोटे छोटे कई सारे आपके स्पर्मेटोजोआ हमें नजर आता जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो इसी स्टेप को हम लोग नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और यहां से जो ये रिलीज हो रहा है, रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, इसी स्टेप को हम लोग यहां पर नाम देते हैं स्पर्मिएशन। देखना आपके नोट्स के अंदर हर एक डिटेल दिया हुआ है, यहां पर बहुत कम समय में आपको समझा दे रहा हूं हर चीज। तो स्पर्मिएशन क्या है? रिलीज ऑफ द स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका स्पर्मिएशन। और ये जो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ, इसको हम लोग नाम देंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और ये एंटायर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स को हम लोग नाम देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया? कोई दिक्कत? क्लियर? अब लास्ट पोर्शन हमारे पास आ गया है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे और एक क्लास में, और वो पोर्शन हो जाएगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेनिस। क्लियर? उसको कैसे करके क्या क्या आपके टिश्यूज है जिसके हिसाब से आपका इरेक्शन होता है फॉर एडवांसिंग इट इनटू कॉप्युलेशन। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज दैट ऑफ योर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। क्लियर? तो उसको हम लोग आगे क्लासेस में डील करेंगे। टिल देन अच्छी तरह पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।